Moment of inertia. It is term analogous to. It is term analogous to the mass in linear motion. Term analogous to mass in linear motion. As mass determines acceleration of the body when force acts on it, moment of inertia determines angular acceleration of the body when torque acts on it. सर as mass determines acceleration के बाद क्या बोला आपने? As mass determines acceleration of the body when force acts on it, moment of inertia determines angular acceleration of the body. Moment of inertia determines angular acceleration of the body when torque acts on it. When torque acts on it. Larger the moment of inertia, larger the moment of inertia, smaller will be the larger the moment of inertia, smaller will be the angular acceleration. Consider a rigid body. Consider a rigid body rotating about a fixed axis. Consider a rigid body rotating about a fixed axis. Consider a rigid body rotating about a fixed axis with angular velocity omega. With angular velocity omega. The total kinetic energy. The total kinetic energy of the body is the sum of the total kinetic energy is the sum of kinetic energy of individual parts of the body
Total kinetic energy of the body is the sum of kinetic energy of individual parts of the body. For a body of total mass m, we divide it into n parts. For a body of total mass m, capital M, we divide it into n parts having mass. M1, M2 up to Mn at a distance. At a distance R1, R2 up to Rn from the axis of rotation. The linear speed of each particle the linear speed of each particle is given by linear speed of each particle is given by so total kinetic energy is sum of kinetic energy of all particles. You can write it as जैसे लीनियर मोशन में था हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कि मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, वी वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गई. सो बेसिकली फिर आई क्या हो गया, फिर आई इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन. इस सारे को हम आई बोल देते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर. तो ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे. बिकॉज अगर R1 R2 बदलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा कब होगा, अगर मासेस का डिस्टेंस एक्सेस से ज्यादा हो या कम हो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा कब होगा, इफ मासेस आर अवे लार्ज डिस्टेंस. लार्ज जितना डिस्टेंस. ज्यादा डिस्टेंस होता जाएगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा.
So you can write I is called moment of inertia. I is called moment of inertia, and I is called moment of inertia, and it depends on mass of the body and distribution of mass about axis of rotation. Distribution of mass about axis of rotation. If mass is distributed at large distance from the axis, moment of inertia will be large. And if it is closer to the axis, moment of inertia will be small. And if it is closer to the axis, moment of inertia will be small. And if it is closer to the axis, moment of inertia will be small. जैसे मैं आपसे पूछूं से मेरे पास एक रॉ एग है और एक हार्ड बॉइल्ड एग है, मैंने दोनों पे सेम टॉर्क लगाई, तो फास्टर कौन सा रोटेट करेगा? दोनों घूम रहे हैं, सिंपल यही बता दो, चलो दोनों घूम रहे हैं, रोटेट कर दिया मैंने, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा किसका होगा, रॉ एग का या हार्ड बॉइल्ड एग का? सर रॉय का। सर रॉय का। रॉ एग का, क्योंकि मास तो सेम है, रॉ एग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा क्यों होगा? अगर मैं रोटेट करूंगा तो रॉ एग के अंदर जो कंटेंट है वो एक्सिस के पास रहेगा या दूर चला जाएगा एक्सिस से? दूर चला और जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ गया। हार्ड बॉइल्ड एग है तो उसमें रिजिड बॉडी होगी, उसमें मास मूव नहीं कर सकता क्योंकि सब फिक्स हो गया अपनी जगह पे। पर अगर रॉ एग है, लिक्विड फॉर्म में है, जब आप रोटेट करोगे वो कॉर्नर्स पे चला जाएगा, कॉर्नर्स पे चला जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। सो इसको हम एक और वे में भी डील करते हैं आगे जाके विस्कोसिटी की टर्म्स में, कि हम कहते हैं कि रॉ एग एंड हार्ड बॉइल्ड एग को रोटेट करोगे तो रॉ एग जल्दी रुकेगा, बिकॉज उसमें एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ज्यादा है ही, बट लिक्विड लेयर्स एक दूसरे की मोशन को अपोज करेंगे उसको रोकने के लिए। बट अभी हम उस कंसेप्ट पे नहीं जाते। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे सिलेबस में बोर्ड ने जो रखी है दैट इज ऑफ रिंग एंड डिस्क, कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। उसके अलावा हम दो तीन और भी जो करेंगे वो आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, सॉरी रिजल्ट आना चाहिए। डेरिवेशन नहीं भी याद रहेगी तो भी चल जाएगा, कि जैसे स्फीयर है तो हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे यहाँ पे, बट अगर डेरिवेशन भूल भी जाते हैं रिजल्ट आर मोर इम्पोर्टेंट, कि आपको रिजल्ट से याद हो सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के, और एक्सिस के साथ की किस एक्सिस के अबाउट कौन सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। बट उससे पहले एक टर्म आएगी जिसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। गायरेशन क्या होता है? इंग्लिश का वर्ड है ये, गायरेशन, GYRATION, गायरेशन। गायरेशन क्या होता है? हम गायरेटिंग बॉडी, गायरेशन किसको बोलते हैं? गायरेशन बेसिकली रोटेशन को ही बोलते हैं, रोटेशन का ही दूसरा नाम है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं हम, रेडियस ऑफ, बिकॉज उससे एक जनरल फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बन जाएगा। अगर मेरे पास कोई भी रिजिड बॉडी है और वो रोटेट कर रही है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका निकलेगा समेशन MIRI स्क्वायर से, कि आपने जो फॉर्मूला लिखा वहां से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता है। बट हम रेडियस ऑफ गायरेशन को कहते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस, मान लो k,
जहां पे हम बॉडी का सारा मास रख दें, मतलब हम एज्यूम करें कि पॉइंट बॉडी और सारा मास यहीं पड़ा है। एक तो फॉर्मूला हमने पीछे लिखा कि I इज इक्वल्स टू समेशन MI/R² बट अगर मैं मानूं कि ये सारी बॉडी एक पॉइंट मास है और वो k डिस्टेंस पे बढ़ी है, तो इस एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सर समेशन MIR mk स्क्वायर। mk²। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को हम यहीं से डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे इट इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। दैट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस मतलब k। इट इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस वेयर इफ होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, कि हमने सारी बॉडी का मास k डिस्टेंस पे रख दिया। इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम एज दैट ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। तो इस पॉइंट मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही हो जो बॉडी का। बॉडी का क्या था? समेशन MI²। तो दैट मींस mk² should be equals to summation MI/R²। मतलब mk² इज, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा हो गया दिस इज इक्वल्स टू m1r1² प्लस m2r2² प्लस mnrn²। ओके, अगर मैं बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, मतलब मैंने m1 m2 अलग अलग नहीं लिया, अगर मैं ये मानूं कि मैंने बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब अगर ये सारे पार्ट्स जो हैं सेम ही हैं m के इक्वल, तो मैं m को कॉमन ले सकता हूं। बॉडी के n पार्ट्स किए, हर पार्ट का मास m है, तो टोटल मास कितना हो गया बॉडी का? मैंने बॉडी के n पार्ट्स किए, हर पार्ट का मास m है, तो टोटल mn मास कितना हो गया? mn। mn तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, दिस इज टोटल मास इज mn_k²। m कैंसिल हो गया दोनों साइड पे, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास k कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ r1² प्लस r2² प्लस rn² बाय n होल अंडर द रूट। क्या बोलते हैं इसको? पढ़ के आए हो केमिस्ट्री में, इसको क्या बोलते हैं? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा इसे, दिस इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस। डिस्टेंस। वहां वेलोसिटी थी, यहाँ पे डिस्टेंस है। मतलब सारे डिस्टेंसेस का स्क्वायर, उसका अर्थमेटिक मीन और उसका अंडर रूट। तो रूट मीन स्क्वायर, कि सारे डिस्टेंसेस को स्क्वायर करके अर्थमेटिक मीन लिया, फिर उसका अंडर रूट ले लिया, इसलिए इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। सो मैथमेटिकली आप कह सकते हो रेडियस ऑफ गायरेशन इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया कैसे डिराइव किया? पहले तो डेफिनेशन देखो, बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। Radius of gyration is that distance where if whole mass is concentrated, its moment of inertia is same as that of the body. तो न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है कंसेप्ट, बिकॉज वो कह देंगे कि बॉडी का मास 5 kg, रेडियस ऑफ गायरेशन 2 मीटर, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? मास 5 kg, रेडियस ऑफ गायरेशन 2 मीटर, 20 बिकॉज mk²। क्या आपको सिर्फ m और k² को प्रोडक्ट लेना है, सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mk²। एक वे होगा कि वो आपको रेडियस और मास देंगे, उस केस में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जैसे हॉलो स्फीयर है तो 2/3 mr²। बट अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दे दिया तो फिर कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, हर बॉडी का mk², उसमें अलग अलग फॉर्मूला नहीं होता। रेडियस के टर्म में हर बॉडी का अलग होगा, डिस्क का हाफ mr², रिंग का mr², हॉलो स्फीयर 2/3 mr², रॉड का कुछ और से अगर सेंटर के अबाउट निकालोगे तो ml²/12। बट अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है तो फॉर एवरी बॉडी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम फॉर्मूला mk²।
डायग्राम बनाओ फिर लिखते हैं इसकी डेफिनेशन और इसकी डेरिवेशन करते हैं. सिर्फ डायग्राम बना लो अभी. So we can write radius of gyration. It is that distance from axis of rotation. It is that distance from axis of rotation where if whole mass of the body is concentrated, its moment of inertia will be same as that of the body itself. Its moment of inertia will be same as that of the body itself. For example, for any rigid body of mass m, if radius of gyration is k, the moment of inertia will be mk square. The moment of inertia will be mk square. Next paragraph में लिखो. Consider a rigid body of mass capital M and rotating with angular velocity omega about the axis. Rotating with angular velocity omega about the axis. If we divide the body into n parts, at a distance r1, r2 up to rn, if we divide the body into n parts at a distance r1, r2 up to rn from the axis of rotation, then moment of inertia
then moment of inertia of the body is, then moment of inertia of the body is I is equals to also if m is total mass and k is radius of gyration. फिर नोट करो. So we can write the radius of gyration can also be defined as this radius of gyration can also be defined as root mean square distance. Root mean square distance from the axis of rotation.
root means square distance from the axis of rotation. Next to right. थ्योरी आगे करने की जगह पहले एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं. Two particles of mass m1 and m2. Two particles of mass m1 and m2 are joined by a light rigid rod of length r. Are joined by a light rigid rod of length r. The system rotates at an angular speed omega through center of mass of the system and perpendicular to the rod. Find angular momentum of the system. Find angular momentum of the system. Find angular momentum of the system. ऐसे गिवन है. हमें सेंटर ऑफ मास पता नहीं. लेट इट बी सेंटर ऑफ मास. इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है. विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ये रॉड घूम रही है. रॉड का अपना कोई मास नहीं दिया. मैं इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लेता हूँ 0 0, इसके आर 0, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएंगे पहले? y तो 0 ही आना है. XCM. मतलब ये डिस्टेंस आ गया. XCM. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस आ रहा है तो r माइनस XCM. इसको अगर मैं r1 मानता हूं तो m1 का डिस्टेंस है r1, m2 का डिस्टेंस है r2. एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? फर्स्ट बॉडी का m1 v1 r1. सेकेंड बॉडी का यही फॉर्मूला किया था कल, mvr. सेकेंड बॉडी का m2 v2 r2. v1 is r1 omega.
V2 is R2 omega. अब ध्यान से देखो ये क्या है बेसिकली, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर Moment of inertia. आई ओमेगा। लीनियर मोशन में मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? MV. तो m की जगह आ गया i, v की जगह ओमेगा। हमने r1 r2 पहले निकाल लिया है कि r1 और r2 की वैल्यू निकाली हुई है। तो एंगुलर मोमेंटम इज m1 r1 इज प्लस m2 r2 स्क्वायर इनटू ओमेगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो दिस वुड बी आ रही है तो क्या बचा हमारे पास? इसको हम कई बार म्यू भी लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। यहां तक भी छोड़ दोगे तो चल जाएगा। m1 m2 upon m1 plus m2 into r square omega, and m1 m2 over m1 plus m2 is called reduced mass. So उसको म्यू से डिनोट कर देते हैं, म्यू r square omega। देखो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? लास्ट में देख लेना, where mu denotes reduced mass of the system. Where mu denotes reduced mass of the system. Also, सो यहाँ पर रिड्यूस्ड मास का मतलब क्या हुआ? ये एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जब दो बॉडीज एक दूसरे से अटैच मूव करती है ना, तो इंडिविजुअल निकालने की जगह आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो हर जगह पे। मतलब जैसे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी को हम नॉर्मली हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, बट इफ टू बॉडीज आर मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ईच अदर तो उसको हम हाफ म्यू वी स्क्वायर में लिख देते हैं। फॉर्मूला डिराइव करोगे तो भी यही आएगा कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी भी इसमें निकालता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी हाफ म्यू वी स्क्वायर आ जाएगी, वेयर वी इज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू। आपको याद है हमने लॉस ऑफ एनर्जी इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या था? न्यूमेरिकल किया था, एक लॉस ऑफ एनर्जी इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, उसमें यही फॉर्मूला आया था, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। दैट इज बेसिकली हाफ म्यू इंटू v रिलेटिव का होल स्क्वायर। आगे आगे जैसे फिजिक्स बढ़ेगी प्लस टू में तो इसका काफी यूज होना शुरू हो जाएगा रिड्यूस्ड मास का। सो यू कैन राइट, इसके नीचे नोट लिख लो एक, पहले तो ये लिख लो म्यू डिनोट्स रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम।
मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, आप देखना कि जो आप कन्वेंशनल मेथड लगाते हो, तो अगर आपका न्यूमेरिकल से एक पेज में सॉल्व हो रहा है, अगर मैं उसको थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करूंगा तो वो हाफ पेज में हो जाएगा। अगर मैं रिड्यूस्ड मास से सॉल्व करूंगा तो वो एक लाइन में ही हो जाएगा। सो रिड्यूस्ड मास आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को आसान बनाएगा आगे जाके। सो यू कैन राइट, ऐसा नहीं है कि इसके बिना चीजें सॉल्व नहीं हो सकती, पर ये सिर्फ आसान बनाएगा आपके कंसेप्ट्स को। नेक्स्ट इज नोट में लिखो, angular momentum of a rotating body. Angular momentum of a rotating body is given by I omega. Angular momentum of a rotating body is given by I omega, where I denotes moment of inertia and omega angular velocity. This is analogous to the linear momentum by replacing mass with moment of inertia and velocity with angular velocity. Similarly, rotational angle analog. Similarly, rotational analog of force is torque. Rotational analog of force is torque. As F is equal to ma, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह inertia moment of inertia I. Moment of inertia. और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन. Similarly, torque is rotational analog of force. In linear motion, F is equal to ma. In linear motion, F is equal to ma. And in rotational motion, tau is equals to I alpha. ये हम वैसे ड्राइव भी करेंगे ये दोनों रिलेशन भी, अल्फा डिनोट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, बट आप एनालॉगस याद रख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एम वी की जगह आई ओमेगा, एम ए की जगह आई अल्फा, सिमिलर रिलेशन चलेंगे। और ये वैसे भी जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा, सो वो सेम रिलेशन चलते रहते हैं। तो रोटेशनल एनालॉग्स अगर आपको मतलब लीनियर मोशन के रिलेशन याद है तो आप रोटेशन में डायरेक्ट लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम की जगह टाइम ही रहेगा, s की जगह थीटा आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू mv की जगह l इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और सारे रिलेशन ऐसे एक्सटेंड होते हैं। सर
हाँ जी, सर थीटा एंगल होगा। एंगल। हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो सारे रिलेशन सिमिलर बना सकते हो आप। ऊपर वाली 4-5 चीजें याद रख लो, उन्हीं से ही नीचे के रिलेशन बने हैं। जैसे u की जगह ओमेगा नॉट लिख दिया, v की जगह ओमेगा लिख दिया, वो नीचे वाले रिलेशन बनते जाएंगे अपने आप। तो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। कोई टेस्ट रखना है, कौन से चैप्टर का रखें? पीछे वाले चैप्टर्स में से कौन सा आता है, किसका एमसीक्यूज का टेस्ट दे सकते हो? लॉज, वर्क, काइनेमैटिक्स। यूनिट्स नहीं, यूनिट्स को छोड़ दो। सर कौन से laws of- चैप्टर? लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है। कल ऐड कर दूंगा मैं, 1 आवर का टाइम होगा। कभी भी दे लेना, दोपहर 2 बजे से रात को 11-12 बजे तक का टाइम दे दूंगा। जब आपको 1 आवर मिले पूरा स्पेयर, उस टाइम देना।